هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. شہری جمعیت اہل حدیث منگلور کے قابل احترام اراکین، عہدیداران، ذمہ داران اور اسی طرح سے اس جمعیت کے دعوتی کاز سے، دعوتی سرگرمیوں سے منسلک ہمارے فاضل علماء کرام، دعات، حوصلہ مند نوجوانان، آپ تمام قابل احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، قابل احترام ماں اور بہنوں، عزیز بچوں، اسی طرح سے مسجد ابراہیم خلیل کے قابل قدر، قابل احترام منتظمین، اراکین، ذمہ داران اور جملہ معاونین جنہوں نے شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت اور خصوصیت کے ساتھ آپ کی حقیقی دعوت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی سچائیوں کو لوگوں کے سامنے عام کرنے کے لیے یہ عظیم الشان پروگرام منعقد کیا. شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت پر اور خاص طور پر ان کی دعوتی زندگی اور دعوت کی حقیقت کو اجاگر کرنے کے لیے، حقیقت یہ ہے کہ پورے دن کا بلکہ کئی دن کا سیمینار ہونا چاہیے. ان کی زندگی جو ہے بہت ساری تفصیلات پر مشتمل ہے. اس میں آزمائشیں ہیں، قربانیاں ہیں، دعوت توحید ہے، دعوت سنت ہے، اور اسے ہی سلف صالحین حضرات صحابہ کرام کا منہج ہے، ان کا راستہ ہے. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو بہت زیادہ اہم موضوع ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ مجدد ہیں، ان کے نام کے ساتھ مجدد کا وصف لگا ہوا ہے، شیخ الاسلام المجدد محمد ابن عبد الوہاب. تو مجدد تجدید کا کام کرتا ہے. تجدید کسے کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یبعث علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا. اللہ تبارک و تعالی ہر صدی پر ایسے لوگوں کو مبعوث کرتا ہے، یعنی پیدا کرتا ہے، وجود میں لاتا ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے دین کو امت کے لیے نیا کرتے ہیں. نیا کرنے کا مطلب نیا دین لانا نہیں، وہ دین جس کے اندر بہت ساری ملاوٹیں آ گئیں، بہت ساری کمیاں آ گئیں، خامیاں آ گئیں، بہت سارا خلل اس کے اندر آ گیا. تو ان تمام کمیوں سے، خامیوں سے، خلل سے اس دین کو پاک صاف کر کے اس اصل شکل میں پیش کرنا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں بیان فرمایا ہے. اس کو تجدید کہتے ہیں. تو اب جب تجدید کرنے والا اس مشن پر چلتا ہے اور تجدید کرتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ جو ملاوٹیں، جو کمیاں، خامیاں اور اس کے اندر کہتے ہیں آمیزشیں آ گئی ہیں، اس کے خلاف جب بات کرتا ہے تو بہت ساری مخالفتیں ہوتی ہیں، اس کے خلاف لوگ کھڑے ہوتے ہیں. کیونکہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا، اور یہ ان کا اثر ہے، صحیح سند کے ساتھ مروی ہے، کہ حالات ایسے بھی ہوں گے امت کے بعض ادوار میں، بعض زمانوں میں، کہ اچھائیاں برائیاں ہو جائیں گی، برائیاں اچھائیاں ہو جائیں گی. لوگ برائی کے راستوں پر چلیں گے، سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کے راستے پر چلیں گے، اور لمبا عرصہ اسی پر چلتے رہیں گے. بچہ اسی میں پل بڑھ کر کے جوان ہوگا، جوان اسی بدعت میں، سنت کو چھوڑ کر کے بدعت کی راہ پر اسی میں ایک جوان بوڑھا ہوگا.
اور جب یہ لمبا عرصہ گزر جائے گا نہ اس بچے کو پتہ چلے گا کہ دین اصل کیا ہے، حقیقت کیا ہے، نہ اس جوان کو پتہ چلے گا کہ اصل دین کیا ہے۔ اس کے سامنے جو گزر رہا ہے کئی سالوں سے، 20 سال 25 سال سے، اس بزرگ کے سامنے، جوان کے سامنے 20 سال 25 سال سے جو طور طریقہ چل رہا ہے، اسی کو وہ دین سمجھ لے گا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کے اندر فرمایا ہے کہ حتی اذا، جب، خلاصہ بتاتا ہوں میں، کہ جب اس بدعت کے خلاف کوئی کھڑا ہوگا، اس بدعت کو کوئی بدعت کہے گا تو لوگ طعنہ دیں گے اور کہیں گے غیرت السنہ، یہ دیکھو سنت کو بدلا جا رہا ہے، وہ بدعت ہے لیکن بدعت کے عادی ہو گئے، برسوں سے لوگ بدعت پر چل رہے ہیں، اب جب اس کے خلاف کوئی کھڑا ہو رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ بدعت ہے، اصل سنت تو فلاں ہے، تو لوگ کیا کہیں گے؟ غیرت السنہ، یہ دیکھو سنت کو بدل دیا گیا، جبکہ بدعت ہے وہ، لیکن لوگ اسی کے عادی ہو گئے ہیں، بچہ اسی پر پل کر کے جوان ہو گیا، جوان اسی پر رہ کر کے بوڑھا ہو گیا۔ تفصیلات ہیں، میں سرسری طور پر آپ کے سامنے اس کا معنی پیش کر رہا تھا۔ تو جب ایک مجدد ہوتا ہے نا تو اس کی مخالفت بھی بہت ہوتی ہے، معارضہ بہت ہوتا ہے، اس کے خلاف بہت سارے لوگ کتابیں، تحریریں، پمفلٹ اور اس کے علاوہ جو وسائل ہوتے ہیں ان تم وسائل کا استعمال کر کے بہت سارے پروپیگنڈے کرتے ہیں، اس دعوت کو مجروح کرنے کے لیے بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں، بہت ساری تہمتیں جوڑ دی جاتی ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر اصل حقیقت نہ بیان کی جائے تو یہ خالص دعوت، خالص توحید کی دعوت، خالص سنت کی دعوت یہ دب کر کے رہ جائے گی، چھپ کر کے رہ جائے گی۔ اسے واضح کرنا ضروری ہے، غلط فہمیوں کا ازالہ کرنا ضروری ہے، ڈاؤٹس کو کلیئر کرنا ضروری ہے۔ تو یہ ساری موضوعات شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمت اللہ علیہ کی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگر اس پر بات کرنے کے لیے ہم بیٹھیں اور اگر بہت تفصیل میں بھی نہ جائیں تو کئی گھنٹوں کا کام ہے، کئی گھنٹوں کا کام ہے، یہ یاد رکھیں۔ تو یہ شخصیت جس پر ہم اور آپ آج بات کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ حقیقت دعوت الشیخ محمد بن عبد الوہاب، اس پر بات کرنی ہے۔ ہم ان کی سیرت پر، ان کی زندگی پر، ان کی پیدائش وفات پر زیادہ بات نہیں کریں گے، بالکل اختصار کے ساتھ بات کر کے بات آگے بڑھائیں گے تاکہ ان کی دعوت کی حقیقت کھل کر کے آپ کے سامنے آ جائے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ 12ویں صدی ہجری کے عالم ہیں، 12ویں صدی ہجری کے، کیونکہ شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی، محمد بن عبد الوہاب بن سلیمان بن علی التمیمی النجدی، اور لمبا ہے شجرہ، بنو تمیم سے ان کا تعلق ہے، قبیلے بنو تمیم سے۔ ان کی پیدائش جو ہوئی ہے وہ ہوئی ہے 1100 ہوئی ہے 1206 ہجری میں۔ اگر آپ مائنس کریں تو کم و بیش 241 سال پہلے اس امام کی وفات ہوئی ہے، جن کی زندگی پر اور جن کی دعوت کی حقیقت پر بات کرنے کے لیے ہم اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ آج سے کم و بیش 250 سال پہلے تقریباً یہ زندگی انہوں نے 12ویں صدی ہجری کی گزاری ہے، اس لیے ان کو 12ویں صدی ہجری کا عالم، امام، مجدد کہا جاتا ہے۔ میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، کچھ باتیں خصوصی طور پر جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی عرض کروں گا، کیونکہ ظاہر کہ وقت بھی بہت محدود ہے اور بہت زیادہ پھیلنے کی کوشش کرنا مناسب نہیں ہے، تاکہ وہ بات آپ کے سامنے خاص طور پر آ جائے جس کا بیان کرنا یہاں پر مقصود ہے۔ اور میں تھوڑا سا آپ کے سامنے اشارہ کر دوں کہ دیکھیے، اگر ہم اور آپ پورے انصاف کے ساتھ، ہمارے بھائی، ہماری بہنیں ہے نا، ملک وطن عزیز ہندوستان میں، عرب میں، عجم میں، اردو دنیا، عربی دنیا، انگریزی دنیا، کوئی بھی زبان کی جاننے والے لوگ ہوں، اگر شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب تمیمی نجدی رحمت اللہ علیہ کی زندگی اور خاص طور پر ان کی دعوت کو سمجھنا چاہتے ہو تو کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی کتابیں بھی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قسیم کا علاقہ ہے نا سعودی عرب میں، القسیم کا علاقہ ہے نا، جہاں کافی بڑی تعداد ہے علماء کرام کی، دین پسندوں کی بڑی تعداد ہے، اور اسی علاقے کے علامہ محمد بن صالح العثیمین رحمت اللہ علیہ بھی ہیں،
उसी इलाके के शेख साले बिन फौजान बिन अब्दुल्लाह अल फौजान इस वक्त के मुफ्तुल्लाह अलैह, उसी इलाके में एक बस्ती है कसीम के इलाके में जिसको उनैज़ा अब्दुल्लाह अलैह, उसी इलाके में एक बस्ती है कसीम के इलाके में जिसको उनैज़ा कहते हैं। उनैज़ा की बस्ती के वो रहने वाले थे और उसी इलाके के उनके उस्ताज अल्लामा अब्दुर्रहमान बिन नासिर अस्सादी रहमतुल्लाह अलैह भी थे, जिनकी तरबियत में रह करके इमाम मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन इमाम बन गए, इतने ऊंचे मकाम और मर्तबे पर फाइज हो गए इल्म के। बहरहाल उस कसीम के लोगों ने जब शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तजदीदी दावत का मिशन शुरू किया, तौहीद की दावत, शिर्क के खिलाफ, बिदअत के खिलाफ, सुन्नत की दावत का काम जब शुरू किया तो उस वक्त काफी वाहवेला मचा। जाहिर है कि इस तरह के वसाइल मीडिया के और वसाइल इबलाग, जिसको हम मुख्तसरन इशारा करना है आपके सामने, तो उस वक्त शेखुल इस्लाम को बाकायदा कसीम के लोगों ने खत लिखा कि आप ये कौन सी दावत पेश करने लगे, बेचैनी पैदा हो रही है। हम बरसों से जिस अकीदे पर, जिस दीन पर, जिस अमल पर, जिस इबादत पर जारी थे, चल रहे थे, ये उसके खिलाफ आप बातें कर रहे हैं। तो जरा आप डिक्लेयर कीजिए कि आपका अकीदा क्या है, आप वादे कीजिए कि आपका अकीदा क्या है, आप जो जिस बात की दावत देते हैं वो दावत किस चीज की दावत है, हकीकत में आप किस पैगाम को उम्मत में आम करना चाहते हैं। ये सवाल किया था। उस सवाल के जवाब में, उस खत के जवाब में एक पूरा रिसाला शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा था और उसी के अंदर पूरा अकीदा शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का मौजूद है, उनकी दावत की बुनियादें मौजूद हैं। सिर्फ उस एक रिसाले को, जो एक छोटे से बुकलेट की शक्ल में, मैं समझता हूं कि बुकलेट की हैसियत से आपको वो किताब मिल जाएगी, अगर आप उसको पढ़ लें, कोई भी पढ़ ले, दुनिया का आदमी इंसाफ वर, और ये किसी की रिवायत नहीं है, ये बाकायदा खुद शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का जवाब है कि आपकी दावत की क्या हकीकत है, आप किस बात की दावत देते हैं, हमें वाज़े कीजिए, हमें डाउट है, शुबहा है, कंफ्यूजन है। उस सवाल के जवाब को अगर हम पढ़ लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मसला हल हो जाएगा कि उनकी दावत की हकीकत क्या है। मैं उसमें से कुछ बातों का तज़किरा आगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला करूंगा, ताकि जो है ये बात आपके सामने बहरहाल उनके इस खत के जवाब में आपके सामने आ जाए। अब आइए जरा मैं थोड़ी सी बात ये आपके सामने करूं सरसरी तौर पर कि ये जो दौर था 12वीं सदी हिजरी का, इस दौर में जजीरतुल अरब की हालत क्या थी। सबसे पहली बात तो किसी एक नाम से कोई मुल्क नहीं था, कोई हुकूमत नहीं थी, बल्कि क्या थे, कबाइल थे, इलाकों में अलग अलग बस्तियों में लोगों की अपनी अपनी हुकूमत के नेक बंदों और सालिहीन की कब्रों की पूजा होती थी, उन्हें आलिमुल गैब होने का अकीदा रखा जाता था, उनका वसीला लेकर के अपनी मगफिरत और आखिरत में मगफिरत, और कि ये दरख्त मेल है, क्या है ये, मेल है, यानी मुज़क्कर है, वो औरतें जिनके यहां औलाद नहीं होती थी, ऐसी औरतें जाकर के इस अकीदे के साथ कि ये मर्द है, अगर इससे मैं अपने जिस्म को लगा लूंगी, इसके पास जाकर के बैठ जाऊंगी, अपने जिस्म को अगर मैं मस कर लूंगी तो मुझे बच्चा हो जाएगा, मुझे औलाद हो जाएगी। इतना बुरा माहौल जजीरतुल अरब का था। तो ये बहुत सरसरी तौर पर, क्योंकि वक्त क्योंकि बहुत कम है और मैं बहुत लंबी बात नहीं करने की पोजीशन में हूं, और जो बातें जल्दी जल्दी में कह ली जाती हैं मैं उसके लिए मादरत खा भी हूं आपके सामने, क्योंकि जाहिर है कि जो असल पहलू है वो आपके सामने आना चाहिए। तो जजीरतुल अरब की सूरत हाल ये थी। शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का जो मसला था ऐसा भी नहीं है जैसा कि बहुत सारे लोग बावर कराते हैं। हकीकत क्या है, शेखुल इस्लाम बहुत ज़हीन फतीन, बचपन से ही 10 साल की उम्र में कुरान हिफ्ज कर लेना, पूरा बैकग्राउंड, उनके वालिद जहां उनकी पैदाइश हुई थी ना, आज जो रियाज का इलाका है सऊदी अरब में, रियाज में आज भी ओयना नामी जगह मौजूद है, हुरैमिला नामी जगह मौजूद है, दरइया नामी जगह मौजूद है। तो शेख रहमतुल्लाह अलैह की जो पैदाइश हुई थी सन 1115 हिजरी में, वो
उसी दरइया के मकाम पर हुई थी और वफात ओयैना के मकाम पर हुई है ना। ओयैना के मकाम पर पैदाइश हुई और दरइया के मकाम पर वफात हुई। ये इलाके आज भी मौजूद हैं। जाहिर है कि आज वो जदीद डेवलपमेंट और तरक्की में हमारी समझ में बात नहीं आएगी, लेकिन ये वही इलाका है। याद रखें, उस इलाके के काजी थे अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, जो शेखुल इस्लाम के वालिद हैं ना, शेखुल इस्लाम के जो वालिद हैं वो उस इलाके के ओयना शहर के काजी थे उस जमाने में, आज से 250-300 साल पहले। और उनके वालिद जो हैं सुलेमान, वो भी अपने वक्त के चोटी के उलमा में से थे और बहुत सारी किताबों के मुसन्निफ थे, बहुत सारी रसाइल के मुसन्निफ थे और उनकी भी अलग अलग सीरत है। सुलेमान साहब की सीरत आप पढ़ें। और इसीलिए ये तरबियत उन्हें दादा परदादा के जमाने से बाप के वास्ते से होते हुए मिली कि अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खिदमत करें, इल्म हासिल करें, दीन की बुनियादी तालीमात को हासिल करें। अलबत्ता अल्लाह तबारक व तआला जिसको जिस काम के लिए मुंतखब करता है, अल्लाह तबारक व तआला जिसको जिस काम के लिए मुंतखब करता है वो उस काम का अहल बन जाता है। जाहिर है कि ये तजदीदी काम अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह से लेना था, इसलिए ये सेहरा शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह के सर पर बंधा और आज दुनिया अल मुजद्दिद के नाम से उनको जानती है। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह शुरू से ही इल्म हासिल करने में मुनहमिक रहे। इल्म हासिल किया बचपन ही से, है ना, और किताबों कुरान करीम के हिफ्ज के बाद दीगर रसाइल का हिफ्ज करना, याद करना। और हमारे उस्ताद थे, उस्ताद बाहयात थे अभी अल्हम्दुलिल्लाह, डॉक्टर अब्दुल रज़्ज़ाक़ बिन अब्दुल मुहसिन अल बद्र हाफिज़हुल्लाह। वो शेखुल इस्लाम की जिंदगी पर गुफ्तगू करते थे, मदीना यूनिवर्सिटी की बात है ये। तो वो कहते थे कि इस कदर दावत का जज्बा, इस कदर मुखलिस दाई, इस कदर कहते थे कि वो गांव गांव जाते थे, कबीला कबीला जाते थे। जाहिर सी बात है कि जो फसीह जबान हम और आप सुन रहे हैं, बोल रहे हैं और अहले इल्म की किताबों के अंदर मौजूद है, ये फसीह जबान हर आदमी नहीं बोल पाता था। गांव के इलाके, देहात के इलाके, जैसे आज हमारे यहाँ भी देहात के लोग फसीह जबान नहीं जानते, अपनी जबान भी नहीं जानते। उनकी जो जबान होती है देहात की, गांव की, है ना, आराबियों की या बदवी करवियत की, वो अपनी जबान बोलते हैं। शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह इस कदर दावत का सच्चा जज्बा रखने वाले कि वो गांव गांव करिया करिया जा करके जुमे के दिन खुतबा, मिंबर पर खड़े होकर के खुतबा उनकी अपनी लोकल जबान में, देहाती जबान में, उनके लबो लहजे में, ताकि कम से कम वो जो बात समझते हैं उस जबान से उन्हें तौहीद समझाई जाए, उस जबान से, उस लबो लहजे से, उस उसलूब से उन्हें अल्लाह की तौहीद का पैगाम पहुंचाया जाए, सुन्नत की राह दिखाई जाए। और जिस तरह के इनहिराफात, जिस तरह की गुमराहियां उनके यहां आम हो चुकी हैं, उनसे उनको आगाह किया जाए। तो ये बिल्कुल सरसरी तौर पर मैं आपके सामने ये बात अर्ज करना चाहता हूं। आइए, मैं चाहता हूं कि ज्यादा बात लंबी ना हो और खुलासे के तौर पर ये मसला आपके सामने आ जाए कि आखिर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह का बैकग्राउंड जो कुछ इतना अच्छा था और इस तरह से उन्होंने ये तजदीदी काम अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से किया कि क्या हकीकत है। ऐसी बहुत सारी इल्जामात में एक इल्जाम ये भी लगाया जाता है कि इस कदर तशद्दुद उनके यहाँ पाया जाता था कि वो हर कसो नाकस पर कुफ्र का हुक्म लगा करके दीन इस्लाम से खारिज कर दिया करते थे और उनकी जान माल को हलाल समझा करते थे। इस तरह की बातें भी बहुत सारे लोगों ने कही है, इसका भी तस्करा इंशाअल्लाह तबारक व तआला आएगा। ऐसे ही वहाबी का जो लफ्ज है, ये जो इस दावत के साथ चस्पा कर दिया गया और ये जाहिर किया गया कि ये कोई 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां कोई नया रास्ता है जो लेकर के शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह आए और उसको उम्मत के सामने, अवाम के सामने या मिसाल के जजीरतुल अरब में फैलाना चाहते हैं। ये सारी चीजें हुई। उन तमाम मौज़ूआत पर हम दाखिल नहीं होंगे जो मामला मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह का और मोहम्मद बिन सऊद रहमतुल्लाह अलैह का हुआ और किस तरह से उसमें ज्यादा तफसील में नहीं जाना है, लेकिन इतनी बात अपनी जगह पर मुसल्लम है कि अल्लाह तबारक व तआला का दीन दो तरह की वलायतों से आगे बढ़ता है। दो तरह की वलायतों से अल्लाह तबारक व तआला का दीन आगे बढ़ता है। इस्लाम का निजाम ये चाहता है, लेकिन उसूलों के साथ, ज़ाब्तों के साथ ये काम होना चाहिए। जब अल्लाह तबारक व तआला ने उलुल अम्र का जिक्र फरमाया, उलुल अम्र का, अल्लाह की इताअत और रसूल की इताअत के बाद व उलुल अम्रि मिनकुम कहा, तो उलुल अम्र के अंदर दो तबके आते हैं, अल उलमा वल उमरा। अल उलमा वल उमरा, मामलात की जिम्मेदार उलमा है और मामलात की जिम्मेदार
उमरा हैं। ये अमारत यानी नज़्म ज़ब्त और उलमा यानी दीन और इल्म की, दीन की रहनुमाई करना, इन दोनों चीजों को एक साथ में अगर हम समझेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से इस दावत को जो मजबूती और कुव्वत और असालत अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाई, उसका राज आपकी समझ में आ जाएगा। याद रखें, इस आयत करीमा की तफसीर करने के लिए जब शेखुल इस्लाम अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैह बैठे और अपनी किताब इलामुल मुवक्किईन में लिखने लगे, तो इन्होंने कहा कि जो जिस वलायत की बात चल रही है व उलिल अम्रि मिनकुम, इसके अंदर दो वलायतें आती हैं, एक है अमारत और एक है इल्म की वलायत। यानी एक है जिम्मेदारी इल्म की और एक है जिम्मेदारी निजाम और सिस्टम चलाने की। दोनों चीजें वलायत के अंदर शामिल हैं। फिर उसके बाद इन दोनों वलायतों में जब मुआवजा करने लगे कि इल्म की वलायत ऊंची है या अमारत की वलायत ऊंची है, तो उन्होंने कहा अमारत के ऊपर इल्म की वलायत गालिब है। यानी जो अमीर होगा, जो मुसलमानों का निजाम चलाएगा, मुसलमानों के रहन सहन और उनके मसाइल की देखरेख करेगा, यानी जो तनफीज करने वाला काम है, वो तनफीज करने वाला काम तो करेगा, लेकिन उसकी रहनुमाई, उसकी तालीम, उसकी हिदायत देने वाले उलमाए किराम होंगे। इसीलिए उलमा भी वली अम्र है और उमरा भी वली अम्र है, लेकिन उमरा के ऊपर उलमा वली अम्र है। इसीलिए हमारे अस्लाफ भी कहा करते थे, बहुत पहले की बात, इमाम इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह से बहुत पहले की बात, सलफ के अक़वाल मौजूद हैं कि वो क्या कहते थे अल मुलूक हुक्कामुन अलन नास वल उलमा हुक्कामुन अलल मुलूक। कहते थे जो बादशाह हैं, बाजम के, चाहे वो एशिया हो, अफ्रीका हो और दीगर बर्रे आजम हो, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में ये तौहीद की दावत, बर्रे आजम हो, पूरी दुनिया के चप्पे चप्पे में ये तौहीद की दावत, सुन्नत की दावत अल्हम्दुलिल्लाह आम हो गई। और शिर्क और बिदात का जो माहौल बना हुआ था, बरसों से उस पर लोग अमल कर रहे थे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला ने उसको भी खत्म करने की तौफीक अता फरमाई। तो ये बहुत सरसरी तौर पर। अच्छा, आइए मैं ज्यादा लंबी बात ना करूं क्योंकि जो बात असल है वो छूट ना जाए। ये सरसरी तौर पर जो हमने आपके सामने बात कही है, और मैं आपसे इशारा कर रहा था कि कसीम के लोगों ने, अल कसीम के लोगों ने बाकायदा खत लिखा था और आपका अकीदा पूछा था कि आपका अकीदा क्या है, आपकी दावत की बुनियाद क्या है। और इसमें से जो चंद बातें मैं आपके सामने जिक्र करना चाहता हूं, उसमें इंशाअल्लाह वो सारी हकीकत आ जाएगी कि मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह की दावत की क्या हकीकत है, या हकीकी दावत, हकीकत क्या है उस दावत की जो पेश कर रहे हैं। उस रिसाले का नाम क्या है? रिसाले का नाम है अकीदतु अहली सुन्नति वल जमाअ। अकीदतु अहली सुन्नति वल जमाअ, इस नाम से छोटा सा रिसाला है और उसमें सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बयान की। यहां सारी बातें मौजूद नहीं है, लेकिन मैं बहुत दरखास्त करूंगा आपसे, एकदम गौर से सुने अपने भाइयों से जो यहां मौजूद हैं, ताकि ये हमारे भाई, ये हमारे बड़े, हमारी बहनें, ये जहां जहां भी उनके साथ उठना बैठना होता हो, जहां भी उठे बैठे ये पैगाम उन तक पहुंचाएं, ताकि इस दावत की हकीकत, इस दावत की सच्चाई लोगों के सामने आए, गलत फहमियां दूर हो जाएं, शुबहात का इजाला हो जाए, तोहमतें बेनकाब हो जाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है और हमेशा से ये काम होता रहा है। अब उसकी तो अलग तारीख है कि शुरू से तोहमतें लगती रही हैं, होता रहा। आइए देखिए, मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से उनके अकीदे के बारे में कसीम के लोगों ने सवाल किया, क्या है आपका अकीदा? उन्होंने लिखा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अकीदतु अहली सुन्नति वल जमाअ। मैं बिल्कुल सरसरी तौर पर बात करूंगा, ये जुमला शुरू का सुने, देखिए, कहते उशहिदुल्लाह व मन हदरनी मिनल मलाइका व उशहिदुकुम अन्नी अअतक़िदु मा अअतक़िदुहु अल फिरक़तन मा अअतक़दतहु अल फिरक़तुन नाजिया अहलुस सुन्नति वल जमाअ मिनल ईमान बिल्लाह व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल बाअस व बादल मौत वल ईमान बिल क़द्रि खैरिही व शर्रिही। ये बुनियाद एकदम शुरू में कहते मैं अल्लाह तबारक व तआला को गवाह बना करके ये बात बोल रहा हूं, और जो फरिश्ते यहां मेरे आसपास मौजूद हों अल्लाह के, उन फरिश्तों को भी गवाह बनाता हूं और मैं तुमको भी गवाह बनाता हूं। क्या? इस बात पर कि मैं वही अकीदा रखता हूं जो अकीदा फिरक़े नाजिया का था, जो अकीदा फिरक़े नाजिया का था और है, क्योंकि फिरक़े नाजिया खत्म नहीं होने वाली। फिरक़े नाजिया उस वक्त तक है जब तक क़यामत कायम नहीं होती है। फिरक़े नाजिया, ताइफ़े मंसूरा है कि नहीं, और ऐसे ही अल जमा, अहलुस सुन्ना वल जमा, सवाद आज़म, ये सारे नाम उन्हीं के हैं। तो कहते हैं कि जो फिरक़े नाजिया, अब फिरक़े नाजिया उसी हदीस की तरफ इशारा है ना, 73 फिरकों वाली हदीस की तरफ, इल्ला
इल्ला वाहिदा, यही है इल्लन नाजिया, सिवाय एक के जो नजात पाने वाली, 73 में से एक। जो अकीदा उसका है, कौन सा अकीदा था? मा अना अलैहिल यौमा व अस्हाबी, जिस पर आज मैं और मेरे सहाबे के नाम है। मैं उसी अकीदे का हामिल हूं जिनको अहले सुन्नत कहा जाता है, अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। क्या अकीदा था उनका? अल्लाह तबारक व तआला पर ईमान, उसके फरिश्तों पर ईमान, किताबों पर, रसूलों पर, और मौत के बाद दोबारा उठाए जाने पर, और तकदीर के अच्छे बुरे होने पर मैं यकीन रखता हूं, ये मेरा ईमान है। अच्छा, उसके बाद और बहुत सारी बातें उन्होंने एक एक पॉइंट पर बात की। औलिया की करामत का मसला, इत्तिबाए सुन्नत का मसला, तकदीर का मसला, और मुसलमानों के हुक्मरानों के साथ हमारा मामला कैसा होना चाहिए, ये सारी बातें धीरे धीरे करके उन्होंने सब बातें बयान फरमाई। मैं उनमें से चंद बातें सिर्फ आपके सामने जिक्र कर रहा हूं। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। जब झूठी करामतों को बेनकाब कोई करता है तो ये इल्जाम एक जबान के साथ लगा दिया जाता है, ये औलिया की करामात को नहीं मानते, ये औलिया की तौहीन करते हैं, ये औलिया का मकाम नहीं मानते, औलिया किराम की तौहीन और तनकीस करते। ये बात आमतौर पर कह दी जाती है। लेकिन देखिए, यानी ऐसी चीजें अता फरमाता है जो आम तौर पर आम लोगों को नहीं मिलती हैं। खास मैं उसका इकरार करता हूं, इल्ला। अब आज इल्ला के बगैर इसी पर इक्तिफा कर दिया जाता है, चाहे वो करामतें सच्ची हों, झूठी हों, तौहीद के खिलाफ जाएं, सुन्नत के खिलाफ जाएं, शिर्क का रास्ता दिखाएं, बिदअत का रास्ता दिखाएं, सब लोग अंधे बहरे होकर के इन करामतों पर ईमान रख लेते हैं। लेकिन ये इल्ला, यही से एतराज होता है। इल्ला क्या कहते हैं? सिवाय इसके कि अन्नहुम ला यस्तहिक़ून मिन हक़्क़िल्लाहि तआला शैअन, अल्लाह तबारक व तआला का कोई हक उनको हासिल नहीं है। अल्लाह की इबादत होगी, अल्लाह की, है ना, का रुकू होगा, सजदा होगा, अल्लाह तबारक व तआला से खौफ होगा, उम्मीद लगाई जाएगी, मांगा जाएगा, सारी चीजें, ऐसा कोई हक इन अल्लाह के औलिया को हासिल नहीं। यह है तौहीद का अकीदा। तो औलिया की करामत का इनकार नहीं करते। औलिया की करामत के सिलसिले में जो इनहिराफात, जो गुमराहियां, जो बदअकीदगियां पाई जाती हैं, जिस पर अल्लाह के सिवा किसी को कुदरत नहीं है। बहरहाल उसके बाद एक मसला है तकफीर वाला, बहरहाल उसके बाद एक मसला है तकफीर वाला। तकफीर, मुसलमानों को शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब रहमतुल्लाहि अलैह इस्लाम से बाहर निकालते थे, उनको काफिर करार देते थे, एक गलती की बुनियाद पर, दो गलती की बुनियाद पर, और उनको इस्लाम से बाहर निकाल करके उनकी जान हलाल, उनका माल हलाल, उनको कत्ल करना हलाल, इस तरह का अकीदा, इस तरह की बातें बतौर प्रोपेगेंडा फैलाई जाती हैं। याद रखें, ऐसा कोई अकीदा तकफीर का हरगिज शेखुल इस्लाम के यहां नहीं पाया जाता जो सलफ़े उम्मत का अकीदा न रहा हो। जो अकीदा किताब का है, सुन्नत का है, सहाबे किराम का है, किसी को काफिर करार देने के सिलसिले में उसी अकीदे पर शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाहि अलैह कायम थे। कहते ला उकफ्फिरु मुस्लिमन बिज़म्बिन, मैं किसी भी मुसलमान को किसी गुनाह की बुनियाद पर काफिर नहीं कहता। देखा कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है, कितना बड़ा प्रोपेगेंडा। अच्छा, हम लोग ना, हमारे पास वक्त है और ना हम वो सब बातें करने के लिए बैठे हैं मेरे भाइयों, वरना मैं आपको उसकी मिसालें भी पेश करता कि किसने बड़ी बड़ी किताबों में ये बात लिख दिया कि काफिर करार देने में आजाद थे और जल्द से जल्द किसी पर तलवार उठाने के कायल थे। अस्तगफिरुल्लाह। इस तरह की बातें लोगों ने अपनी किताबों में लिखी और बड़े बड़े नाम है उसके अंदर। बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि यह अकीदा गलत है। उनके बारे में नजरिया कि वो तकफीर के कायल थे, जान माल को हलाल समझते थे, ऐसा नहीं था। कहते हैं मैं किसी मुसलमान को किसी गुनाह की बुनियाद पर, जब तक कि वो कुफ्र और शिर्क के दायरे में न चला जाए, किसी गुनाह की बुनियाद पर मैं काफिर नहीं करार देता। कहते हैं वला अशहदु, साथ ही साथ मैं इस बात की भी गवाही नहीं देता किसी मुसलमान के बारे में कि वो जन्नती है या जहन्नमी है। किसी के जन्नती होने की गवाही नहीं दी जा सकती, किसी के जहन्नमी होने की गवाही नहीं दी जा सकती, सिवाय उसके जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नती होने की बशारत दी है। अशरे मुबश्शरा और उनके अलावा बहुत सारे सहाबा को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। बस उनके लिए हम आगे कहते हैं वलाकिन्नी अर्जु लिल मुहसिनी व अखाफु अलल मुसी, अलबत्ता जो आदमी नेक अमल कर रहा है, नेक रास्ते पर है, मैं उसके बारे में नेक उम्मीद रखता हूं, अल्लाह इसकी बख्शिश फरमाएगा, इसको जन्नत
जन्नत देगा। जो आदमी बदअमल है, बद किरदार है, उसके बारे में अल्लाह के अजाब से डरता हूं। वला उकफ्फिरु अहदम मिनल मुस्लिमीन बिज़ंब, मैं किसी भी मुसलमान को किसी गुनाह की बुनियाद पर काफिर नहीं कहता। वला उखरिजुहु मिन दायरतिल इस्लाम, और न किसी को मैं दायरे इस्लाम से बाहर निकालता हूं। देखा आपने? अब कोई कैसे इतनी आसानी के साथ कह सकता है? इल्जामात हो सकते हैं, प्रोपेगेंडे हो सकते हैं, ऐसा नहीं है। ये उनका अकीदा है जो उन्होंने खुद अपनी किताब के अंदर, अपने खत के जवाब के अंदर लिख करके दुनिया के सामने आम किया। उसके बाद आगे मजीद बात है कि मुसलमानों का जो एक बहुत बड़ा शिआर है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था वज़िरवतु सनामिहिल जिहादु फी सबीलिल्लाह, ज़िरवतु सिनाम, इस्लाम के कोहान की बुलंदी अल्लाह तबारक व तआला की राह में जिहाद है। जिहाद जैसा कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था हमेशा कायम रहेगा जब उसकी जरूरत आएगी, जब तक उसकी शर्तें पूरी होंगी, उसके उसूल बैठेंगे और उसके लिए जो चीजें मुतकाजी हैं, जब तक वो सारी चीजें पाई जाएंगी, हमारा ईमान कदम उठाता है, मासूमों की जान लेता है। वो उस कदम उठाता है, मासूमों की जान लेता है। वो उसका अपना जुर्म है, वो उसका अपना जुर्म है। न इस्लाम उसकी इजाजत देता है, न शेखुल इस्लाम की तजदीदी दावत में उसकी गुंजाइश है, न उस रास्ते पर चलने वाले उनके अबना और उस जिसको कहते हैं ना अद्दावत सलफिया, अइम्मे दावत सलफियत, इनमें से किसी का कोई इस पर किसी का कोई ऐसा अकीदा नहीं है। सब के सब इस बात के कायल है अल्हम्दुलिल्लाह कि ये इंतहा पसंदी है, ये दहशतगर्दी है। इसकी बुनियाद पर जो कुछ इस्लाम की बदनामी हो रही है उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जो ये कदम उठाते हैं। इस्लाम इससे बरी है, इस्लाम इससे बरी है। और फिर उसके बाद इस्लाम का निजाम क्या है? अम्र के बारे में कि वली अम्र बुज़दिल है और जिहाद वाजिब हो गया है, जिहाद करना चाहिए। जिहाद क्यों नहीं करता? ये उलमा बुज़दिल हैं जो उलमा मुसलमानों के हुक्मरानों का साथ देते हैं, उनका सपोर्ट करते हैं, उनके बारे में जबान नहीं खोलते, वो दल्लाल हैं, फला है, सारी चीजें गैर मुनासिब अंदाज की बातें लोग करते हैं ना। और वो बुरे हो तब भी उनकी इताअत करनी है, उनसे बगावत नहीं करनी है। कब तक बगावत नहीं करनी है? जब तक कि वो इस्लाम से बाहर न चले जाए, कुफ्र न करने लगे। और ऐसा भी नहीं है कि कुफ्र का फैसला कोई भी हमाशुमा खड़ा हो जाए और फैसला करे कि हाकिम काफिर हो गया। ये वाला काम खवारिज ने किया था। किसने किया था? खवारिज ने, जुल्खुसरा वाली पार्टी ने, उसने ये काम किया था, झट से किसी को इस्लाम से बाहर निकालना। और उसी रास्ते पर आज भी बहुत सारे फिरके चल रहे हैं, बहुत सारे लोग चल रहे हैं। तो बहरहाल खुलासे कलाम ये है कि इसका भी फैसला कौन करेगा? किसी के काफिर हो जाने का, इस्लाम से बाहर निकल जाने का फैसला कौन करेंगे? जो उसकी अहलियत रखने वाले उलमा है, जो दीन के उसूलों को समझते हैं। कब किसको दायरे इस्लाम से बाहर निकाला जाएगा, है ना, उसके लिए उसूल हैं, जाब्ते हैं। उसने किसी आदमी ने कुफरिया बात कह दी है तो उस कुफरिया बात कहने के पीछे उसकी क्या हकीकत है? वो जाहिल तो नहीं है, वो किसी की देखा देखी तो नहीं कर रहा है, वो किसको मजबूर तो नहीं कर दिया गया है, और बहुत सारे, है ना, उसके उसूल और जाब्ते हैं। उसके बाद ही ये तो हुक्म लगाने की बात है। अब उसके बाद जो खुरूज और बगावत और दंगा जो करने की बात है, ऐसा नहीं है कि मुसलमानों का हाकिम अगर फर्ज करो कि कुफ्र कर रहा है, वाकई कुफ्र कर दिया है उसने, तो अब उसके खिलाफ बगावत का झंडा उठाना ही जरूरी है। नहीं, उसके बाद भी शरीयत का उसूल आता है, सलफियत का उसूल आता है कि ये उलमा देखें, जो उस वक्त के उलमा हो सुन्नत और सलफियत के, वो ये देखें कि बगावत करने का अंजाम क्या होगा, इस कदम के उठाने का अंजाम क्या होगा। ऐसा तो नहीं कि बगावत करने में नुकसान ज्यादा है, फायदा कम है, या नुकसान ही नुकसान है, फायदा है ही नहीं। ये सब देखने के बाद कोई कदम उठाया जाएगा। लेकिन आज दो वर्ड के लोग क्या कर रहे हैं? जिनके पास 2 हर्फ का इल्म है, को नहीं मानते, ये नहीं बोलना है। वो जो गुनाह का काम करने के लिए कह रहा है ना, उसका ये नहीं बोलना है। वो जो गुनाह का काम करने के लिए कह रहा है ना, उस काम में उसकी इताअत नहीं करनी। भाई ये काम आप जो कह रहे हैं ये किताब और सुन्नत के खिलाफ है, मैं इसमें आपका कहा नहीं मानूंगा, लेकिन बगावत नहीं करना है, बाहर नहीं निकलना है। तो जब ये बात बयान की जाती है ना कि जब तक इताअत का हुक्म दे उनकी बात मानो, और जब इताअत के खिलाफ करने का हुक्म दे तो उनकी इताअत नहीं है। ला ताअता लि मखलूकिन फी मासियतिल खालिक। तो उसका मतलब लोग क्या समझते हैं? अब उसने एक अगर किसी गुनाह का काम करने का हुक्म दे दिया तो अब उसकी इताअत से बाहर निकल जाओ, हाथ खींच लो उससे।
یہ خوارج کا عقیدہ ہے، خوارج کا نظریہ ہے، چاہے وہ پرانے والے خوارج ہوں یا جو اس قسم کی عقیدے، اس قسم کے افکار و نظریات آج کے دور میں رکھتے ہیں۔ بہرحال خلاصہ کلام یہی ہے، کہتے ہیں کہ جو خلافت اور بادشاہت کے منصب پر فائز ہو جائے، مسلمان اس کے ساتھ جمع ہو جائیں، اس سے راضی ہو جائے، چاہے وہ زبردستی حاکم بن گیا ہو، چاہے وہ غالب ہو جائے، زبردستی حاکم بن گیا، اس کو زبردستی نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن زبردستی کر کے اگر وہ حاکم بن گیا اور سب لوگ اس کے ساتھ ہو گئے تو اب ہم کو اس کے خلاف بغاوت کا جھنڈا نہیں اٹھانا ہے۔ اسلام اجتماعیت چاہتا ہے، یہی عقیدہ تھا کس کا؟ یہی عقیدہ تھا شیخ الاسلام محمد عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا۔ اس کے بعد آئیے ذرا سا اور اچھی طرح سے اس بات کو سمجھیں کہ اب یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ وہ ایک الگ دین، الگ عقیدہ، الگ فکر لے کر کے آئے، دنیا کو ایک الگ راستہ دکھایا، یہ اس کی کیا حقیقت ہے؟ خود اسی خط کے اندر کہتے ہیں وَلَسْتُ، انہی کا بیان ہے، وَلَسْتُ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ أَدْعُو إِلَى مَذْهَبِ صُوفِيٍّ أَوْ فَقِيهٍ أَوْ مُتَكَلِّمٍ أَوْ إِمَامٍ مِّنَ الْأَئِمَّةِ الَّذِينَ أَعْظَمُهُمْ أُعَظِّمُهُمْ مثل ابن القیم والذهبی وابن کثیر وغیرہم، بل ادعو اللہ، لاجک سے کسی بھی چیز کو منوائے، کسی کو منوائے اپنی عقل سے۔ میری عقل یہ کہتی ہے اور لوگوں سے کہتا ہے، آپ لوگ بتائیے آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ تعالیٰ اترتا ہے، آپ بتائیے کیا مطلب ہے اترنے کا؟ آپ کا دماغ کیا کہتا ہے؟ آپ کا ذہن، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی کو صاحب کلام کہتے ہیں، اسی کو متکلم کہتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہ میں کسی صوفی کے راستے کی طرف بلاتا ہوں، مسلک کی طرف، نہ کسی فقیہ کے مسلک کی طرف، نہ کسی متکلم یعنی یہی عقل پرستی کی طرف بلاتا ہوں میں، او امام من الائمۃ الذین اعظمهم، نہ میں ان اماموں میں سے کسی امام کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں جن کا میں احترام کرتا ہوں، جن کی میں تعظیم کرتا ہوں، جن کے مقامی ہیں۔ امام ابو الحجاج المزی ہیں، یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں جن کی کتابوں کی جلدیں 100 150 جلدیں ہیں، انہوں نے شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ سے علم حاصل کیا۔ تو کہتے ہیں ان بڑے بڑے ائمہ جن کی میں تکریم کرتا ہوں، احترام کرتا ہوں، میں ان کے بھی مسلک پر چلنے کی دعوت نہیں دیتا۔ میں کس بات کی دعوت دیتا ہوں؟ ادعو الی اللہ وحدہ لا شریک لہ وادعو الی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں دعوت دیتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی، اللہ کی دعوت دیتا ہوں کہ آؤ اللہ واحد کی عبادت کرو، اس کی بندگی کرو، اسی کے لیے ساری عبادتیں خاص کر دو، کوئی ادنا اعلیٰ کوئی بھی اس لائق نہیں ہے کہ اللہ کی عبادت کا کوئی ایک ذرہ بھی کی زبان میں اس کے لیے جو لفظ عام طور پر استعمال ہے وہ مسلک کا لفظ استعمال ہے، حالانکہ مسلک مذہب دونوں عربی لفظ ہے اور دونوں کے معنی چلنے کی، جانے کی جگہ، جائے ہے نا، سلوک چلنے کی جگہ یا چلنے کی جگہ یا جانے کی جگہ۔ کیا کہتے ہیں؟ مذہبنا، یہ دیکھیے اچھی طرح سمجھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ بھی بہت بڑا پروپیگنڈا ہے اور آج کل شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کو اور ان کے شاگردان کو، ان کے ابنا کو، اور آج کل کے جو علماء سعودی عرب کے اندر کام کر رہے ہیں، بڑے بڑے مناصب پر ہیں یا عام علماء کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں یہ بار بار کی بات کہی جاتی ہے کہ یہ لوگ بھی تو حنبلی مسلک کے ہیں، یہ لوگ بھی تو حنبلی ہیں۔ حنبلی مسلک کا نام یقیناً موجود ہے اور وہ کس اعتبار سے حنبلی ہیں، کس اعتبار سے حنبلی ہیں اور کس اعتبار سے ان کو حنبلی ثابت کر کے کون سا مقصد حاصل کرنا لوگ چاہتے ہیں، اس کا بھی پتہ آپ کو اس میں چلے گا۔ کہتے ہیں مذہبنا فی اصول الدین مذہب اہل سنت والجماعہ، دین کے اصولوں میں اصول اور فروع، اصول اور فروع یہ تو ہم جانتے ہیں، اصول مطلب ایمان و عقیدے کے ابواب ہے نا، اور فروع کا مطلب جو عملی مسائل ہوتے ہیں، جو عملی مسائل ہوتے ہیں، یہ اصول کی بات کر رہے ہیں، یعنی دین کی بنیادوں میں، دین کے ہے نا، دین کی اساس میں، جس کو ہم عقیدہ کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہمارا مذہب دین کے اصولوں میں مذہب اہل سنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت کا ہی مذہب ہے، جس راستے پر عقیدے کے باب میں اہل سنت والجماعت چلتے ہیں اسی پر ہم بھی چلتے ہیں۔ وطریقتنا طریقت السلف، اور ہمارا طریقہ، ہمارا راستہ سلف کا راستہ ہے، ہمارا راستہ سلف کا راستہ ہے، ایک دم صراحت کے ساتھ۔ التی ہی الطریق الاسلم والاعلم والاحکم خلافا لمن قال طریقت الخلف اعلم،
अभी बहुत छोटी सी बात तो कही शेखुल इस्लाम ने, लेकिन इसकी शरह करने बहुत टाइम जाएगा, सिर्फ बिल्कुल सरसरी तौर पर बात आगे बढ़ाता हूं क्योंकि खुद अपने आप में एक मौजू है ये। कहते हैं वही सलफ का तरीका मेरा तरीका है जो तरीका सबसे ज्यादा असलम, आलम और अहकम है। तीन खूबियां सलफ के रास्ते की, कितनी खूबियां हैं? तीन खूबियां। सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मे दीन, जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खालिस दीन मिला, उस दीन की तीन खुसूसियात हैं। वो रास्ता असलम है, वो रास्ता आलम है, वो रास्ता अहकम है। क्या माना इसका? और इसकी वजाहत करते हैं ताकि कोई नया माना निकाल कर सलफ की तरफ चिपका ना दे, सलफ की तरफ मंसूब ना कर दे। वजाहत के साथ कहते हैं वो रास्ता सलफ का। दूसरी बात क्या है? आलम, सबसे ज्यादा इल्म वाला रास्ता है, इसलिए कि ये दीन इल्म का दीन है। ये दीन किसका दीन है? इल्म का दीन है। फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तगफिर लिज़ंबिक। इल्म का दीन है। इल्म नाम है अल्लाह की किताब की दलीलों का, इल्म नाम है नबी की सुन्नतों की दलीलों का, और इल्म नाम है उसी किताब और सुन्नत पर चलने वाले सहाबे किराम के रास्ते का। अल इल्मु क़ाल अल्लाहु क़ाल रसूलुहु क़ाल अस्सहाबतु हुम उलुल इरफानी। इल्म, और ये बात इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाहि अलैहि ने अपनी किताब इल्मुल मुक़ीन के अंदर लिखी है। इल्म किसको कहते हैं? क़ाल अल्लाह को, अल्लाह ने फरमाया को। इल्म नाम है किसका? क़ाल रसूलुहु, रसूल ने फरमाया। और इल्म नाम है क़ाल अस्सहाबा, सहाबे किराम ने फरमाया। इल्म तीन चीजों का नाम है। अल्लाह ने फरमाया, नबी ने फरमाया, नबी के सहाबा ने फरमाया, इसका नाम इल्म है। तो इल्म सबसे ज्यादा इल्म पर मबनी है। सलफ का रास्ता सबसे ज्यादा इल्म के बेस पर है। अब ये इल्म की बेस पर है, ये क्या मतलब है इसका? इल्म के बेस पर है यानी कुरान और सुन्नत के दलाइल पर मबनी है। इल्म के खिलाफ क्या है भाई? क्या है इल्म के खिलाफ? वो सोर्सेस जिनको दीन बना लिया गया, या जहां से दीन को लोगों ने लिया तो गुमराही की तरफ चले गए, वो रास्ता मेरा रास्ता नहीं है। कौन से रास्ते हो सकते हैं? कौन से रास्ते? एक रास्ता है किसका? तसव्वुफ का, कश्फ का, करामात का, इल्हाम का। क्या कहते हैं वो? हमारा दीन तुम्हारा दीन अलग है। कहते हैं ये जो कुरान और सुन्नत का जो दीन है ये आम पब्लिक का दीन है, ये जनरल पब्लिक का दीन है। हम जो खवास हैं ना, खास लोग, इनका दीन ये कुरान और सुन्नत का दीन नहीं है। हम अल्लाह तबारक व तआला से डायरेक्ट इल्म हासिल करते हैं। अब किसी ने दीन का सोर्स किसको बना लिया? डायरेक्ट अल्लाह तबारक व तआला को। किसी ने कहा दीन का सोर्स वो है जो आले बैते रसूल से मिले। किसी ने कहा दीन का सोर्स वो है जो हमारी लॉजिक और हमारी अकल का है। किसी ने कहा हमारा दीन वो है जो हमने बाप दादों से पाया है। ये सारे रास्ते कौन से रास्ते? इल्म के रास्ते नहीं है। इल्म का रास्ता वो जो कुरान और सुन्नत और सहाबा का रास्ता है। तो सलफ का वो रास्ता जो इल्म पर मबनी है। तीसरी खूबी क्या है सलफ के रास्ते की? आलम अहकम। अहकम का मतलब क्या है? ठोस। अहकम का मतलब मजबूत, एकदम ठोस है, उसमें चेंजिंग होने का, बदलने का कोई चांस नहीं है। आज लोग इज्तिहाद करते हैं, आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ बोलते हैं, कभी ये बोला उससे हट गए, कभी वो बोला उससे हट गए। अल्लाह का दीन जो सलफ का रास्ता है वो क्या है? एकदम ठोस, मजबूत उसका रास्ता है। कहते हैं सलफ का रास्ता सलामती वाला रास्ता है। सलफ का रास्ता कहते हैं सलफ का रास्ता सलामती वाला रास्ता है। सलफ का रास्ता ठोस रास्ता है, ये तो हम मानते हैं, लेकिन सलफ का रास्ता सबसे ज्यादा इल्म वाला रास्ता है, हम ये नहीं मानते। अब आजकल का मीडिया, आजकल की किताबें, आजकल के लिटरेचर, इसको क्या समझते हैं भाई? लोग समझते हैं कि ज्यादा पढ़ने का नाम इल्म है, ज्यादा क्वांटिटी का नाम इल्म है। इल्म भीड़ भाड़ का नाम नहीं है इल्म। और इसीलिए हमारे असलाफ ने कहा था सलफ का जो इल्म होता था उसमें वर्ड्स कम होते थे, माना ज्यादा होता था। आजकल के लोगों का मामला यह है वर्ड्स बहुत ज्यादा होते हैं लेकिन मीनिंग बहुत थोड़ी होती है। इसलिए जिन लोगों ने कहा ना कि खलफ का रास्ता, बाद वालों का रास्ता ज्यादा इल्म पर मबनी है, गलत है ये। सहाबे किराम से ज्यादा इल्म वाला ना कोई था और न क़यामत तक कोई उनके ज्यादा, उनसे उनके बराबर इल्म वाला कोई हो सकता है। मैं उसी रास्ते पर चलता हूं। देखा आपने
साफ साफ है कि सलफ का रास्ता है कि नहीं इनका? वही कुरान, वही सुन्नत, वही तौहीद, वही सुन्नत, वही सहाबे किराम का रास्ता। आगे देखिए आगे मजीद देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं, अब ये तफसील में हो जाएगी, बात लंबी हो जाएगी। सिफात के बारे में कहते हैं, अस्मा सिफात के बाब में, सिफात के बारे में बड़ी गुमराहियां हैं कि नहीं है? मुअत्तिला, जहमिया, अशायरा, कर्रामिया और मुशब्बिहा, मुमस्सिला, मुफव्विदा, सारे फिरके वजूद में आ गए। कदरिया, जबरिया, ये सारे गुमराह फिरके जो है ना, इनकी गुमराह होने की क्या वजह है? इनकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह के सिफात की आयतों को, अल्लाह की सिफात की हदीसों को वैसे नहीं समझा जैसे अल्लाह के नबी के सहाबे किराम ने समझा, इसीलिए गुमराह हो गए। अपनी अकल का घोड़ा दौड़ाया, अपनी लॉजिक का इस्तेमाल किया और उसी बुनियाद पर क्या किया? गुमराह हो गए, भटक गए। अब शेखुल इस्लाम कहते हैं कि मेरा वही अकीदा है कि हम सिफात की आयतों को पढ़ते हैं, हम सिफात की आयतों को पढ़ते हैं, सिफात की हदीसों को पढ़ते हैं और उसे उसी तरह से हुआ। कैसे मुस्तवी हुआ? तो इमाम मालिक ने है, वनहनु फिल फुरू', अच्छी तरह सुनना, वनहनु फिल फुरू'i अला मज़हबिल इमाम अहमद इब्न हंबल वला नुनकिरु अला मन क़ल्लद अहदल अइम्मतिल अर्बआ दून गैरिहिम लिअदमी ज़ब्ति मज़ाहिबिल गैर वला नुफ़त्तिशु अन अहदिन फ़ी मज़हबिही वला नअतरिदु अलैहि इल्ला इज़ा तलअना अला नस्सिन जलीय्यिन मुख़ालिफ़िन लिमज़हबि अहदिल अइम्मा। ये फुरू में शेखुल इस्लाम का अकीदा है। फुरू के बारे में उनका क्या अकीदा था? वो कहते हैं हम फुरू के अंदर इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह के मसलक पर है। हम फुरू में किसके मसलक पर हैं? इमाम अहमद बिन हंबल के मसलक पर हैं। ये मसलक पर हैं, इसको अभी याद रखना। आगे मजीद वजाहत कर रहे हैं कि हम किस तरह से इमाम अहमद बिन हंबल के मसलक पर अमल करते हैं। कहते हैं हम उन लोगों पर नकीर नहीं करते, उनको बुरा भला नहीं कहते जो इमाम अहमद बिन हंबल के अलावा दूसरे इमाम, तीसरे इमाम, चौथे इमाम, इन लोगों की तकलीद करते हैं। ये हमारा यानी क्या मतलब? हम मसलक के सिलसिले में हमारा जो रास्ता है वो अहमद बिन हंबल का है, लेकिन और लोग जो दूसरे मसलकों पर चलते हैं उन मसलक पर चलने वालों की हम बुराइयां नहीं करते, उन पर इनकार यानी उन पर नकीर नहीं करते, उनको बुरा भला नहीं कहते। ये उनका अकीदा है। और क्या कहते हैं? कहते हैं इसी तरह से हम किसी के मसलक की खोद कुरेद नहीं करते, उसके अंदर खोद कुरेद नहीं करते और उस पर उस वक्त तक एतराज नहीं करते जब तक कि हमें, अच्छी तरह सुनना इस जुमले को आखिरी, जब तक कि हमें कोई ऐसी सरीह दलील ना मिल जाए, नस ना मिल जाए, कोई आयत ना मिल जाए, हदीस ना मिल जाए जिस आयत के खिलाफ, हदीस के खिलाफ कोई मसलक चल रहा हो। जब तक कोई मसलक कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ, सरीह कुरान और सुन्नत की दलील के खिलाफ ना जाता हो, तब तक हम किसी के पीछे नहीं पड़ते, किसी पर एतराज नहीं करते। मसला वाज़ेह हो गया कि नहीं वाज़ेह हो गया? कि इमाम अहमद बिन हंबल के मसलक पर तो हैं वो, लेकिन कुरान और सुन्नत के खिलाफ किसी इमाम की बात को मानने को तैयार नहीं है, ना खुद उसके खिलाफ जाते हैं और ना किसी पर एतराज करते हैं। आप हनफी हैं तो क्यों, मालिकी है तो क्यों, हंबली है तो क्यों है, शाफई है तो क्यों है, इस पर एतराज नहीं करते। कब तक नहीं एतराज करते? आप निस्बत करते हो, निस्बत करो, निस्बत करते हो करो, उस पर हम एतराज नहीं करते। एतराज उस वक्त करेंगे जब हमें यह मसला मिलेगा कि अल्लाह के कलाम की आयत ये बताती है, नबी की सुन्नत ये बताती है और आप उसको छोड़ करके अपने मसलक को फॉलो करते हैं, तब हम एतराज करते। तो बात सही है कि नहीं सही मेरे भाई? यह है। अब इसमें जिस अंदाज से लोग इमाम शेखुल इस्लाम मोहम्मद अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह को मुकल्लिद साबित करना चाहते हैं दूसरे मसलक वाले, उस तरह से इसमें मुकल्लिद होने की दलील नहीं है। और इसी सिलसिले में हमने आपसे इससे पहले भी दूसरे इलाकों में हमने अर्ज किया है कि अगर आप सिर्फ निस्बत देखने जाएंगे ना, शाफी, हंबली, मालिकी, हनफी, अगर आप देखने जाएंगे तो आपको बहुत सारे उलमा के नाम के साथ ऐसा मिलेगा, लेकिन वो कोई भी अंधा मुकल्लिद नहीं था, कोई भी जामिद मुकल्लिद नहीं था। इमाम शाफी की निस्बत आपको इमाम बुखारी के साथ मिलेगी, इब्ने हजर के साथ रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिल जाएगी, इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह के साथ मिल जाएगी, इब्ने रजब के साथ हंबली मिल जाएगा, इब्ने अबुल इज़्ज़ के साथ जो अकीदे अहले सुन्नत की शरह करने वाले उनके नाम के साथ आपको हनफी मिल जाएगा। इमाम तहावी रहमतुल्लाह अलैह भी हनफी मसलक के थे। लेकिन क्या ये जो हनफी, मालिकी,
मालिकी, हम्बली और शाफी हैं, क्या ये उसी तरह से थे जैसे आज कल के हमारे बहुत सारे भाई तकलीद के मामले में कुरान के खिलाफ भी हो, सुन्नत के खिलाफ भी हो, तब भी वो अपने मसलक को नहीं छोड़ते? तो यही बतला रहे हैं कि हमारा जो अकीदा है वो यही है। इसलिए हम उस वक्त तक एतराज नहीं करते किसी के ऊपर जब तक कि कोई मसलक, कोई भी इमाम का रास्ता, किसी मसलक का रास्ता किसी सरीह कुरान की आयत और नबी की सुन्नत के खिलाफ न जाता हो। तो कुरान सुन्नत के खिलाफ अगर कोई मसलक को फॉलो करेगा तो जाहिर है कि अल्लाह के दिन में कहां गुंजाइश है इसकी कहां गुंजाइश? जाहिर सी बात है कि सब लोग किसके पाबंद हैं? अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत के पाबंद हैं। बहरहाल मेरे भाइयों, अब उसके बाद आखिरी एक बात कह करके मैं चाहता हूं कि बात खत्म कर दूं, क्योंकि शायद बात लंबी हो रही है, वक्त ज्यादा हो रहा है। यहां पर एक बात जो मैं आपसे थोड़ी देर पहले कर रहा था, उसी में कुछ थोड़ी सी और तफसील है, और उसी को आप सिर्फ और साफ सुन लें। देखिए, इतना हमने सुना था कि मैं अल्लाह की लूंगा, उसको रद्द नहीं करूंगा, उसको रिजेक्ट नहीं करूंगा, उसमें कीड़े नहीं निकालूंगा। कहते हैं बल उशहिदुल्लाह, बल्कि मैं अल्लाह को गवाह बनाता हूं, उसके फरिश्तों को बनाता हूं गवाह, और तमाम मखलूकात अपने सर आंखों पर कबूल कर लूंगा, सर आंखों पर कबूल कर लूंगा। आजकल के अगर मुकल्लिदीन में इतना बड़ा सीना अगर हो जाए, सारे मसले खत्म हो जाएंगे। लेकिन कबूल कर लो हक, निस्बत रखते हो रखो, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, लेकिन हक कबूल कर लो। ये कुरान के खिलाफ है, आयत के खिलाफ है, और ये उन्हीं इमामों की तालीम है मेरे भाई, उन्हीं इमामों की तालीम। तो क्या कहा? मैं उसे अपने सराखों पर क्या करूंगा? कबूल कर लूंगा। वला अदरिबन्नल जिदार बिकुल्लि मा खलफहा मिन अक़वालि अइम्मती हाशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहते हैं और मैं अपने, कहते उसके खिलाफ हर बात को दीवार पर मार दूंगा जो मेरे उन इमामों की बात होगी, मेरे इमामों की बात जो भी आएगी और वो अल्लाह के नबी, कुरान और सुन्नत के खिलाफ होगी, तो मैं उसे जरूर भी जरूर क्या करूंगा? उसे दीवार पर मार दूंगा। हाशा रसूलिल्लाह, सिवाय अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और किसी की बात को मैं नबी की सुन्नत के खिलाफ पाऊंगा तो उसे दीवार पर मार दूंगा। फ़इन्नी ला अक़ूलु फ़इन्नहु ला यक़ूलु इल्लल हक़, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो जो बोलते हैं वो हक ही बोलते हैं। अल्लाह के नबी की बात में तो कोई डाउट नहीं है ना, वो हक ही है। बहरहाल तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। उसके बाद देखिए, कहते हैं आगे देखिए, लोगों का जो टकराव बन गया है, टकराव के बारे में एक बात सुनिए। कहते हैं अलिमना क़तअन अन्ना मन रद्दा इलल किताबि व सुन्नह मा तनाज़अ अन्नासु फीही वजद फीही मा यफ़सुलु फिन निज़ा। कहते हैं हमें इस बात का ठोस इल्म है, हमें इस बात का कतई इल्म है, ठोस इल्म है कि जो भी इख्तिलाफी मसले को किताब की तरफ लौटाएगा, सुन्नत की तरफ लौटाएगा, लोगों के इख्तिलाफी मसाइल को किताब की तरफ, सुन्नत की तरफ लौटाएगा, किताब और सुन्नत में जरूर बिजरूर उसका एकदम साफ सुथरा फैसला पाएगा जिससे इख्तिलाफ की जड़ कट जाएगी। और ये हकीकत है कि नहीं हकीकत है? दुनिया के सारे मसले का हल कहां है? वमा इख्तलफ्तुम फीही मिन शैइन फहुक्मुहु इलल्लाह। जिस मसले में भी तुम्हारा इख्तिलाफ है उसका फैसला अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटाओ उसे। ये शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैह की बात थी। और आगे देखिए, कहते हैं वला खिलाफ बैनी व बैनकुम अन्न अहलल इल्म इज़ा अजमउ वजब इत्तिबाउहुम। इजमा के बारे में भी इल्जाम लगाते हैं लोग, इजमा के बारे में भी। ये देखिए उनकी बात कितनी साफ है। कहते हैं इसमें मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है, मेरे और तुम्हारे दरमियान कोई इख्तिलाफ नहीं है कि अहले इल्म जब किसी मसले पर इजमा कर लेंगे तो उस इजमा पर अमल करना वाजिब होगा। मसलक के हवाले नहीं दे सकते, कुरान के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ मसलक के हवाले नहीं, लेकिन अगर किसी इज्तिहादी मसले में सारे उलमा का इजमा हो जाए तो उस इजमा को हम हक मानते हैं, और उस इजमा की तरफ मैं और तुम दोनों जो अल्लाह की तरफ मैं और तुम दोनों जो अल्लाह की किताब कहे, अल्लाह के नबी की सुन्नत कहे, और किताब और सुन्नत में कोई चीज ना हो, उलमा का इजमा हो गया हो, तो मैं दावत देता हूं कि आओ हम सब उस पर मुत्तफिक हो जाएंगे। मैं भी इस पर ईमान रखता हूं, मैं भी इसको मानता हूं, और तुम भी इस बात को मानने के लिए तैयार हो जाओ।
तो शेखुल जो हुकूमतें गुजरी हैं वक्त की, जो हुकूमतें गुजरी हैं वक्त की, जो हुकूमतें गुजरी हैं, उन्होंने भी इस दावत की मुखालफत की है। ये बिल्कुल सरसरी तौर पर इस दावत के खिलाफ जाने वाले अफराद भी हैं, तंजीमें भी हैं, और इसके अंदर सरगना किस्म के है ना लोग भी हैं, और ऐसे ही बहुत सारे ममालिक और बहुत सारे हुक्मरान भी हैं। अब इस हुक्मरान के लफ्ज़ी तफसीलात में जाएंगे तो बात लंबी हो जाएगी। मैं इसी बात पर मैं इक्तिफा करता हूं। मैं समझता हूं कि हमने थोड़ी सी बात बहुत जल्दी में सरसरी तौर पर ही सही, लेकिन शेखुल इस्लाम, ये है सलफ़ी उम्मत का तरीका। हाँ, नई दुनिया में आओ, लेकिन दीन अगर खालिस चाहिए तो कहां जाना होगा? एकदम पीछे वाला, पुराना वाला। और पुराना का लफ्ज हम इस्तेमाल करके इस दीन की तौहीन नहीं कर रहे। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा जो अल्लाह के नबी के पास परवरिश पाते रहे, तरबियत पाते रहे, उन सहाबा ने कहा अलैकुम बिल अम्रिल अतीक, पुराने वाले रास्ते को पकड़ो, पुराना वाला रास्ता, सहाबा का, कुरान का, सुन्नत का रास्ता जो सहाबा ने समझा, उसी रास्ते पर चलो। बहरहाल खुलासे कलाम यह है कि सलफ़े सालिहीन की जो दावत थी, उसी दावत का इम्तिदाद था, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया, कोई नई चीज नहीं लेकर के आए। एक बात आखिरी कह करके बात खत्म कर देता हूं। वहाबियत का जो नाम आया ना, अब उसके बारे में बहुत सारी बातें कही गई, हिंदुस्तान के तनाजुर में भी कही गई, हिंदुस्तान की तारीख वगैरह अगर जाएंगे तो बात लंबी होगी कि उस दावत की कितनी मुखालफत उस वक्त यहाँ की गई थी 12वीं सदी हिजरी के अंदर, और जो 18वीं सदी ईसवी का दौर था, 17वीं और 18वीं सदी का जो दौर था, उस दौर में सारे मामलात हुए थे। बहरहाल ये कहा गया कि ये हिंदुस्तान में तो लोगों ने कहा कि ये अंग्रेजों की पैदावार है, अंग्रेजों की पैदावार है, ये वहाबी का लफ्ज जो है वो अंग्रेजों से इन्होंने अलॉट कराया है, अहले हदीस का अलॉट कराया, इस तरह की बातें लोगों ने कही। लेकिन ये देखिए, ये इंसाइक्लोपीडिया बरतानिया उसके अंदर लिखता है वहाबियत क्या चीज है, वहाबियत क्या चीज है। मैं हिस्ट्री के हिसाब से कर रहा हूं, अपने लोग नहीं, परायों ने भी समझा इस हकीकत को। उन्होंने कहा था वहाबियत क्या चीज है, कहते हैं अल वहाबिया इस्मुल लिहरकत तत्हीर फिल इस्लाम वल वहाबियूना यत्तबिऊन तालीम ar-रसूल वहदा व युहमिलूना कुल्ल मा सिवाहा व अअदाउल वहाबिया हम अअदाउल इस्लाम सहीह। देखा, कहते हैं वहाबियत असल में उस तहरीक का नाम है जो इस्लाम को गंदगियों से पाक करने के लिए आई। यह है दावत। और क्या कहा, वयुहमिलून कुल्ल मा सिवाहा, और नबी की सुन्नत के अलावा, नबी की तालीमात के अलावा जो कुछ है उन सबको नजरअंदाज कर सकते हैं वो, उन सबको नजर। और जैसा कि हमने शुरू में कहा था कि इस तरह के मौज़ूआत के लिए कई घंटों बल्कि कई दिन दरकार होते हैं। एक एक नुक्ते पर तफसीली अगर बात करें तो काफी वक्त दरकार है। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें, काफी वक्त दरकार है, अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ये जो मुबारक मौका अता फरमाया, हम अल्लाह के घरों में से एक घर में बैठकर एक सुन्नत के, तौहीद के, सुन्नत के इमाम की दावत और उसकी दावत की हकीकत और उसकी जिंदगी और उसकी तकरीबन सदी पर मुश्तमिल, सदी पर, एक सदी पर, क्योंकि 1115 से 1206 तकरीबन 90 साल से ज्यादा की उम्र पाई उन्होंने। इसके अंदर उसी शुरू से ही 13, 14 साल, 15 साल के बाद से ही इल्म हासिल करना और फिर उसके बाद आगे बढ़कर के दावत देने का काम शुरू किया इन्होंने। इस मिशन पर जो ये सेमिनार, आज का जो प्रोग्राम मुनक़िद हुआ है, अल्लाह तबारक तआला ने हमें इसमें बैठने की तौफीक अता फरमाई, अल्लाह ने हमें इसका हिस्सा बनाया। अल्लाह तबारक तआला जमीयत अहले हदीस मैंगलोर के जिम्मेदारों को और जमीयत के दावत